ثابت آپ کی طرف فرمائیں۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے تحت 2 روزہ قومی سیمینار کا شاندار آغاز بنگلورو کے فریزر ٹاؤن میں جلسہ بینکویٹ ہال میں منعقد ہوئی پروقار تقریب۔ سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے اس تاریخی سیمینار کا کیا افتتاح۔ بروز سنیچر بتاریخ 6 اگست 2022 انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے تحت 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان جنوبی ہند میں اردو کی ابتدا، ارتقاء اور مسائل منعقد ہوا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے کہا کہ اردو والے اپنی مادری زبان کا حق ادا کریں، اپنی مادری زبان سے انصاف کریں، والدین اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی فکر کریں۔ رحمان خان نے کہا کہ حکومتوں سے گلا شکوہ کرنے کے بجائے اردو کی ترقی کے لیے اردو تنظیمیں، اردو ادارے اور اردو والے دل و جان سے کوششیں کریں۔ اردو کو ترقی گھر گھر میں پہنچانا، اردو افغان نہیں پڑھتا جیسا کہ کہا گیا، آج آئی سی یو میں ہیں پورے اردو افغان، چل نہیں رہے ہیں آئی سی یو میں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ سیمینار میں شیواجی نگر کے ایم ایل اے رضوان ارشد کا خطاب قابل غور، قابل قدر اور دلوں کو موہ لینے والا تھا۔ رضوان ارشد کی تقریر سے اردو کی شیرینی، نزاکت، لطافت ٹپک رہی تھی۔ آپ نے اردو زبان و ادب کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے اسمبلی حلقے میں اردو اسکولوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے جاری کوششوں کا تذکرہ کیا۔ اور جو سامنے تشریف فرما ہے اس میں سخن سمجھ، سخن شناس اور سخن فہم بھی ہے۔ میں سے بھی مجھے کچھ تو کہنا ہے، کیا کہوں یہ سوچ رہا ہوں۔ اچھا ابھی بولے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کیونکہ اردو زبان کی ایک تاریخ ہے۔ اس ملک کی گنگا جمہوری تہذیب کے علم بردار اردو ہے، آپسی بھائی چارے کی پہچان اردو ہے۔ اس موقع پر پلکیشی نگر اسمبلی حلقے کے ایم ایل اے اکھنڈ سرینیواس مورتی نے کہا کہ وہ اپنے اسمبلی حلقے میں تعلیمی ترقی کی جانب خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایم ایل اے اکھنڈ سرینیواس مورتی نے اس سیمینار کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کی۔ اس قومی سیمینار میں بنگلورو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سابق صدر پروفیسر میم نون سعید نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ پروفیسر میم نون سعید نے کہا کہ بھلے ہی اردو زبان کا آغاز شمالی ہند سے ہوا ہو، لیکن جنوبی ہند نے اردو کو سجایا، سنوارا اور پروان چڑھایا ہے۔ اردو زبان جنوبی ہندوستان میں پیدا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو استحکام دیا جنوبی ہندوستان، 3 صدیوں تک اس کے آبیانی کی، اس کو اس قابل بنایا کہ ادبی زبان بن جائے، اور اس کو ادبی زبان بنانا جیسے آپ لوگ سمجھے گا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی آپ پرورش کرتے ہیں، لاتے ہیں کسی چھوٹے سے بچے کی آپ پرورش کرو، آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، آپ اس کی نگہداشت کرتے ہیں، جواب ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کی شادی میں کسی سسرال کو بھیج دیتے ہیں۔ بالکل تقریباً یہی معاملہ اردو کا بھی ہوا کہ ہم اس کو اس کی طبیعت طفلی میں لا کے پھر اس کو جواب اور خوبصورت بنا کر ہم سے واپس شمال ہندوستان میں سے۔ انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی کے سیکریٹری اطہر فاروقی نے بھی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ یہ وقت
अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर उबैदुल्ला शरीफ ने सदारती खुतबा पेश करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अंजुमन हर घर में उर्दू जबान को पहुंचाने की कोशिश करेगी, उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए इक़दामात करेगी। 13 करोड़ रुपए की लागत से आज वो उर्दू स्कूल तामीर हो रहे हैं, काम शुरू हो और सारे कर्नाटक में मॉडर्न स्कूल 13 करोड़ रुपए और ये 13 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के। रोजनामा सालार के कॉलम निगार आजम शाहिद की निजामत में मुनक़दा इफ्तिताई तकरीब में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर ने शुक्रिया की रस्म अदा की। शक्ल में हम लाएंगे, उस दरखास्त पर वो मुआवजा भेज दिए और वो किताब मुजल्ला तैयार है, इंशाअल्लाह कल उसका इजरा होगा। इसलिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस 2 रोजा सेमिनार में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए इल्म व अदब के माहिरीन मकाले पेश कर रहे हैं। सेमिनार में कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों के मंदोबीन भी बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। पेश है बेंगलुरु से जुनूबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तमाम आशिकान उर्दू, मकबूबान उर्दू, फिदायान उर्दू, तवन्नाकान उर्दू से मेरी दानिशवराना उर्दू से मेरी मादराना गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर आ जाए। क्योंकि मैं आप सबकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत सच्चाई पेश करना चाहती हूँ। बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है और ये बारिश मुझे ऐसा महसूस होता है कि उर्दू की शानदार मुस्तकबिल के लिए खुशाई है, क्योंकि ये शेर है कि बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, बारिश की रवानी है, हालात भी बदलेंगे और पानी ही पानी है। देखिए, ये अंजुमन तरक्की उर्दू का जलसा है। उर्दू की तरक्की होना है और तरक्की और उर्दू को मेरा जो पैगाम था कि उर्दू को घर घर पर पहुंचाइए, यानी कि जब तक जिसकी मादी जबान उर्दू है वो उर्दू से नहीं जुड़ेंगे तो उर्दू की तरक्की नामुमकिन है। तो इसलिए मैं इस मौके पर इफ्तिताई तकरीर में कहा कि 2 चीज़ें, एक तो उर्दू को घर घर तक पहुंचाइए, उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ें। अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं तो घर घर तक पहुंचना आसान है। तो ये 2 चीजें हैं, उर्दू की तरक्की होना चाहिए। उर्दू हमारी तहजीब है, तमद्दुन है और उर्दू में हमारी विरासत है, इसलिए उर्दू को बचाना हमारी अखलाकी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है हमारी। अब जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है तो हम खुद उर्दू के मुहब्बान में वो अगर खुद उर्दू से नहीं जुड़ेंगे और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो उर्दू ये दिन भी आएगा कि उर्दू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान से चले जाएगी। कही जा रही है कि हुकूमतें जो है नजरअंदाज कर दी है। देखिए, हुकूमतों के ऊपर कोई भी तरक्की, हुकूमत एक फैसिलिटेटर है। हमारी जो सोच है कि हुकूमत अगर मदद करेगी तो कोई चीज करेंगे, ये नहीं है। हुकूमत को हम जब हमारा अखलाकी फरीजा है तो हुकूमत से क्या लेना जाए, हुकूमत कुछ माली इमदाद दे देगी तो हुकूमत और क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए हुकूमतों के पर मुनज़्ज़र नहीं होना चाहिए। ये कोई भी जबान की तरक्की, जबान बोलने वाले जबान के लिए तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सब बहुत से कमेटी बनते हैं, बट हाउ मच ऑफ कमिटमेंट होता है? ये कमेटी अल्लाह छोड़िए, ये हर एक इंसान की कमिटी, उर्दू जानने वाली का कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि इंट्रोस्पेक्शन हर आदमी को करना चाहिए। अगर जबान को हमें बचाना है तो हमको मेहनत करना है। देखिए, पैगाम मेरा कोई बहुत पुख्ता या बहुत पुराना या कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उर्दू जो है हमारे वजूद से जुड़ी हुई है, हमारी तारीख उर्दू से जुड़ी हुई है, हमारा तहजीब तमद्दुन उर्दू से जुड़ा हुआ है। अगर उर्दू महदूद हो गई तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मुस्तकबिल पर होगा। तो उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को मजबूती देने के लिए, उसको ताकत फरोग करने के लिए हमें सबको आगे आना है और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी का जो थोड़ा बहुत उसको अदा करने की हमने कोशिश की है शिवाजी नगर हल्के में, लेकिन ये भी काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ काम करना है। उसके साथ साथ आज जो उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अंजुमन तरक्की उर्दू के जरिए एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का आज एहतमाम किया है, तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को भी होना है, क्योंकि जुनूब हिंद में उर्दू की क्या तारीख रही, इसका यहाँ से कैसे कैसे विद्वा और फनकार ने क्या ताउन किया है, ये सब चीजों को हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे नौजवानों को की नजर में लाना जरूरी है। और जुनूब हिंद का बहुत बड़ा ताउन उर्दू की तरक्की में रहा है। ये वक्तन फवक्तन हमें ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करना है और इसमें बात होनी है, और उर्दू के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। ये सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए आपको जो कोशिशें चल रही हैं, इनसे में कुछ आपके यहाँ? देखिए, हमने शिवाजी नगर हल्के में जितनी सरकारी स्कूलें हैं, क्योंकि मेरा वक्त जो है 3 साल के अरसे के लिए मैं बना हूँ, एक ज़िमनी इंतखाबात में चुनकर आया हूँ, तो इस 3 साल के अरसे में पहले स्टेज पे तकरीबन 25-26 करोड़ हम सरकारी स्कूलों में लगा रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल शिवाजी नगर हल्के में लाए और शिवाजी नगर हल्के को एक तालीमी हब बनाए, ताकि जो आज हमारे भाई जो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवा सकते, करवाए तो वहाँ की स्कूल या की जो फीस होती है वो हमारा भाई जो ऑटो चलाता है, हमारा भाई जो कारपेंटर है, पेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जो इतनी ताकत नहीं रखता कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालें और वहाँ की फीस को अदा कर सके, ऐसे हमारे भाइयों के बच्चों को, हमारी बहनों के बच्चों को भी इतना ही हक है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएं, और ये समाज के, माशरे की और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे स्कूल उनको फराहम करें। तो ऐसे स्टैंडर्ड स्कूल्स बनाने का काम वो बेड़ा हमने शुरू किया है। हफीजिया स्कूल हो गया, अभी लतीफिया स्कूल हो सकते हैं, अलमीन स्कूल में जो अभी काम चल रहा है, और इसके अलावा कई और स्कूल, तमिल स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो हम काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल में शिवाजी नगर हल्का एक तालीमी हब होगा, और फ्री तालीम सरकारी स्कूलों के जरिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम हमारे एक आम घर के बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, फ्री। सर बताइए सर, आज सेमिनार में आप आए और एजुकेशन पर आपका ज्यादा फोकस है और इस सिलसिले में काम भी हो रहा है, क्या काम हो रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आज हमारा पुलकेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेमिनारी का, उर्दू सेमिनारी का प्रोग्राम चल रहा है, ऑल इंडिया का। ये प्रोग्राम में मैं भी आपको अटेंड करको, ये एक प्रोग्राम में अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एजुकेशन का बारे में ज्यादा हमें टाइम दे रहा है, क्योंकि तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत गरीब है, वो घर घर पे एजुकेटेड होना का हमारा आशा है। उस तरफ से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब IT इंस्टीट्यूट ओपन को रेडी हो रहा है। अब ये महीने में हमें पूजा करने को तैयार कर रहे हैं, सैंक्शन कर पाए गवर्नमेंट से। डीजीएलडी को वास्ते डीजीएलडी में एक IT इंस्टीट्यूट कर रहा है, और 20 रूम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से अभी वो भी रेडी कर रहा है, और 2 डिग्री कॉलेज में भी अभी डेवलपमेंट्स कर रहा है। डिग्री कॉलेज 2 भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ज्यादा एजुकेशन देना हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वास्ते, और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे एक घर को एक एजुकेटेड रहना करको हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तरफ से सबको अच्छा होता है। सबसे बड़ा उर्दू स्कूल आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसकी क्या हालत है?
वो भी वहाँ भी बिल्डिंग करने को हमें रेडी कर रहा है, वहाँ भी नया बिल्डिंग आता है। अब वो PUC कॉलेज ओपन कर को नया बिल्डिंग कर को 3 करोड़ का, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करते हैं। आलमीन स्कूल को भी अभी 90 स्टूडेंट रहेगा, वो स्कूल में बाथरूम से कंपाउंड से भी बन को पेंटिंग से भी कर को अब 300 स्टूडेंट ज्यादा हो गए। अभी डेवलपमेंट ज्यादा कर रहा है, उस तरफ से 2 मंथ्स में एक काम चल रहा है, अभी ज्यादा प्रोग्राम कर रहा है। अभी क्या एजुकेशन के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट में और डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा काम कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में M.Com तक है, वो डिग्री कॉलेज पे हमारा डीजोली में सर्वे नंबर 7 में एक है, उससे भी वहां जाना देखो, और 18 स्ट्रीट पे वहां से करने का कोशिश कर रहा है, तो वो भी करा दीजिए। थैंक यू वालों से हमारा मकसद जो है घर घर उर्दू पहुंचाने का है। ये सेमिनार करने का एक और मकसद ये था कि अंजुमन तरक्की उर्दू कई सालों से जो है बिल्कुल इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, कोई एक्टिविटीज नहीं थी। हमें ये साबित करना था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जिंदा है। आज इस सेमिनार के जरिए सारे मुल्क में जो है ये पैगाम पहुंचा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जो है एक फाल अंजुमन बन के उभरी है। और हमारा मकसद इस सेमिनार से यही है कि उर्दू को किस तरीके से अवाम तक पहुंचाया जाए, जो लोग उर्दू से दूर हो गए उनको उर्दू के करीब कैसा लाए, खासकर नई नस्ल जो है जो उर्दू से दूर हो गए है उसको किस तरीके से उर्दू से जोड़ा जाए। आज का ये सेमिनार, इस सेमिनार में जो है सारे मुल्क से जो है मकाले निगार हजरात आए हैं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतर फारूकी साहब हैं, रहमान खान साहब के हफ्तों इसका इफ्तिताह हुआ, रिजवान अरशद आए थे, और अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो यहाँ के MLA हैं वो भी आए थे। इन तमाम हजरात की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि एक कामयाब सेमिनार है। इफ्तिताई इजलास बहुत कामयाब रहा, और मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उर्दू का, कि हर घर उर्दू, उसमें जो है हम कामयाब होकर रहे हैं। उर्दू स्कूलों की तरक्की का भी आपने क्या मंसूबा बनाया है? देखिए, जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, हमारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, जिसमें आजमी सैयद सलीम साहब हैं, अजीजुल्लाह बेग साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, M.A. खालिद साहब हैं, मीर अनीस अहमद साहब हैं। ये हजरात जो है एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो कई स्कूल जो है उर्दू स्कूल्स को विजिट भी किए हैं। उर्दू स्कूल के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें बहुत कम दाखिले हो रहे हैं, जबकि 4.5 लाख इससे इस वक्त सारे मुल्क में रियासत में जो है पहली जमात से 10वीं जमात तक दाखिले हो रहे हैं, उसको मजीद कैसे ज्यादा किया जाए, और जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसको कैसा कम किया जाए, उस ताल्लुक से जो है ये एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और हुकूमत की तरफ से जो कोताहियां हुई हैं उर्दू स्कूल्स के तरफ से, उसकी भी निशानदेही की जाएगी, और उर्दू हुकूमत से जो है इन स्कूल्स को तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम जोर डालेंगे। जनाब उद्दीन मुनव्वर साहब, जनाब रिजवान अरशद रुकन असेंबली हल्का शिवाजी नगर की खिदमत में हुए पेश करेंगे। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, साबिक सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी और जनरल सेक्रेटरी जरा क्रॉस कीजिए। जनाब सैयद शफीउल्लाह मैसूर से तशरीफ लाए हैं, नायब सदर कर्नाटक मोहम्मद अतर फारूकी साहब की खिदमत में तहनीत पेश कर रहे हैं। जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मुदीर आला रोज़नामा पासबान और सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर मीर सईद साहब की खिदमत में तहनीत पेश करें। जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब, प्रोफेसर मीर सईद साहब की खिदमत में तहनीत पेश करेंगे। से भी इस्तिता है कि जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब की खिदमत में तहनीत पेश करें। डॉक्टर अतर फारूकी साहब से गुजारिश। डॉक्टर खबीर नाज़ीम सरजो साहब की खिदमत में तहनीत पेश करेंगे। जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब।
علم و ہنر میں ثابت قدمی کی ایک روشن مثال قائم کرتے ہوئے وہ مسلمانوں میں پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کرناٹک لیجسلیٹو کونسل کے وہ چیئرمین رہے، پھر 2 میادوں کے لیے ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں راجیہ سبھا کے، مرکزی وزیر کے حیثیت سے بھی انہوں نے بحسن خوبی خدمات انجام دی ہیں۔ مختلف موقعوں پر ملک کے طرز میں انہوں نے اپنے خیالات سے عزیزان وطن کو روشناس کروایا ہے۔ راجیہ سبھا سے ان کی تقاریر پر مشتمل انگریزی اور اردو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب، صدر انجمن ترقی اردو کرناٹک صاحب، سیکرٹری انجمن ترقی ہند جناب سترو صاحب، وائس پریزیڈنٹ اشرف صاحب، اور آج کے یہ 2 روزہ سیمینار میں کرناٹک اور ملک کے کونے کونے سے ملبان اردو جو یہاں جمع ہوئے ہیں، میڈیا کے حضرات، خواتین حضرات، آج کا یہ 2 روزہ سیمینار بہت ہی اہم ہے۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ آج ہم ایک اردو کا جائزہ لیں، اس کا ماضی بہت شاندار رہا۔ اب جو حال کا اردو ہے، اردو کی آپ دوسرے اکیڈمیز دیکھیے، کنڑا اکیڈمی دیکھیے، تامل اکیڈمی دیکھیے، دوسرے اکیڈمی دیکھیے، اور آج دیکھیے کنڑا یا دوسروں کی جو مادری زبانیں، کنڑا کی ایک بات نہیں کرو، جو یہ مادری زبانیں ہیں وہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ محنت ہر چیز کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو محنت ہو، گھر بیٹھے آپ کو کچھ نہیں ملے، اردو بھی ترقی نہیں ہوگی، ہم صرف باتوں میں رہ جائیں گے۔ تو اردو کو ترقی کرنا ہے تو کچھ ٹھوس کام کرنا ہے۔ ہم یہ ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اسی وقت ہم ترقی کر سکیں گے، اردو کی صحیح خدمت اسی وقت کر سکیں گے کہ ہم اردو کو گھر گھر پہنچانے کی جو ایک کوشش نہیں کریں گے۔ تو اردو سے محبت رکھنا الگ بات ہے، اردو کے لیے ترقی کے لیے ایک ورکر بن کے گھر گھر اردو کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہی صحیح خدمت ہوگی۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اس سیمینار کو بڑی خوشی سے افتتاح کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اختر فاروقی صاحب نیشنل لیول پہ اور اسٹیٹ کے لیول اردو کو 2065 اعزازات میں صرف ایک جواب میں صرف آپ کی ترقی دینا، تب تک اردو کا وجود تھا ہی نہیں، کہاں سے ایجاد کیا جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا سالانہ بجٹ 86 کروڑ روپے، UNCPOL کا قومی کونسل کا بجٹ جو ہے 86 کروڑ ہے۔ آپ ان کی اینوئل رپورٹ فاٹا دیکھ لیجیے تو اندازہ ہوگا کہ جنوبی کی ریاستوں کو 3% جب آج ان کی تقریر دیکھیے، جب وہ راجیہ سبھا میں 4 مرتبہ فنڈز نہیں دیے ہوں گے ڈیولپمنٹ، یہ ارمان تھا۔ میں اور مبین منور صاحب گھر میں گئے، رحمان خان صاحب سے بات کر رہے تھے
तो उन्होंने कहा कि उनके गांव में उनके एक उस्ताद ने कहा कि आगे की जो है उनको उर्दू मीडियम में पढ़ना है, तो तकरीबन 8, 9, 10 के नहीं होता था, इसलिए जो है किसी उस्ताद के घर में रह के उन्होंने उर्दू सीखा है। तो एक बात और रहमान खान साहब शायद मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं सर कि मैं भी ये चाहता हूं कि सेमिनार को मशावरत में बदल दिया जाए, ताकि हम आपसी मशवरों से उर्दू अदब की नशर व इशात, हिफ्ज़ व बका, तरक्की व तरवीज के लिए एक मनसूबाबंद तरीक़ेकार के लिए गौर व फिक्र हम लोग सब मिलकर कर सकें। इस दौर जब मुसलमानों के हमले हिंदुस्तान पर शुरू हुए तो सबसे पहली हुकूमत जो वहाँ कायम हुई वो दिल्ली में घोरी खानदान, शाहबदी घोरी के खानदान का सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने दिल्ली में उसके गवर्नर की हैसियत से वहाँ हुकूमत शुरू की। 1206 में जब शाहबुद्दीन घोरी का इंतकाल हो गया तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद सलातीन का एक बहुत लंबा सिलसिला चला। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी आए। ये सब सलातीन जो है दिल्ली को इन्होंने अपना पायदार बनाया। और जिस वक्त ये अल्तुतमिश का जमाना था, 1220 के करीब, तो उस वक्त वस्ती एशिया की तमाम सल्तनतों पर मंगोलों का, चंगेजियों के हमले शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहां जीना जो है नामुमकिन हो गया। तो वो लोग हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करके आने लगे थे। ये लोग जब आए और दिल्ली बहुत बड़ा मरकज बन गया, तो दिल्ली में जो बोली बोली जा रही थी, जिसे हम उस वक्त उसका कोई खास नाम नहीं था, ये आम तस्वुर है कि शायद वो खड़ी बोली थी, लेकिन जदीद लिसानियाती तहकीकात ने साबित कर दिया है कि उस बोली का कोई नाम नहीं था। और बात है कि उसमें खड़ी बोली के अनासर भी शामिल हो गए, तो उसको अहमियत हासिल हुई। ये मकामी बोली थी, तो इस मकामी बोली में लेन देन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कारोबार चलाने के लिए मकामी लोगों के दरमियान और बाहर से आए हुए फारसी बोलने वालों के दरमियान एक मिला-जुला जो रद्द-ए-अमल हुआ, उसके नतीजे में दिल्ली की बोली में फारसी अरबी के अल्फाज ज्यादा से ज्यादा शामिल होने लगे। तो यहाँ से उर्दू की इब्तिदा का एक पस मंजर कायम होता है। लेकिन उसी जमाने में जबकि 1200 के बाद 1301 सदी गुजरी थी, ये जबान किसी हद तक तश्कील पाने लगी थी, तो 1311 में जुनूबी हिंदुस्तान पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला हमला हुआ। उस वक्त तक यहाँ उर्दू का एक लफ्ज नहीं पहुंचा था। अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ हमला हुआ तो उस काफिले में आने वाले तमाम, उस लश्कर में और काफिलों में आने वाले लोगों ने यहाँ पर उसने आकर कर्नाटक और मदुरई और दूसरे मकामात पर कब्जा किया, फतह कर लिया उनको। और फतह करने के बाद यहाँ पर इंतजाम हुकूमत के लिए उन्होंने 100 देहातों पर एक सरदार को मुकर्रर किया, जिसे अमीर सत्ता कहा जाता है। ये अमीरान सत्ता जो थे अपने फैमिली के साथ आए थे, फिर उनके अमले थे, सरकारी लोग थे, ये सब लोग वो जबान बोल रहे थे जो दिल्ली में बन रही थी। ये दिल्ली में बनती हुई जबान बोलते हुए लोग आए थे यहाँ पर, और ये यहाँ पर बस गए क्योंकि यहाँ उनको हुकूमत का इंतजाम संभालना था। 1311 में एक बात हुई, तो 1325 में एक और बड़ा वाक़या हुआ, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पैर दिल्ली से उठाकर देवगीर दौलताबाद में मुंतकिल कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त दिल्ली में कई लाख की आबादी थी। उसने फरमान जारी किया कि यहाँ ये शख्स नहीं रहेगा, पूरी की पूरी आबादी जो है दिल्ली को, मतलब दौलताबाद को यहाँ से निकल जाएगी। कोई 6 महीनों की तकलीदा सफर के बाद ये लोग देवगीर को पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को एहसास हुआ कि वहाँ हमले शुरू हो गए थे दिल्ली वगैरह, तो उसका एहसास हुआ कि मैं यहाँ रहकर हुकूमत नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना चाहिए। वो तो चला गया, लेकिन वो आबादी जो उसके साथ आई थी यहाँ, वो आबादी वापस नहीं गई। ये लोग वही जबान बोलते हुए यहाँ पहुंचे थे जो दिल्ली में बोली जा रही थी। तो अब ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ बस गए।
तो यहाँ जो लोग बस गए उन्हीं में से एक सरदार बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह को यहाँ के अमीरा ने सरदार ने जो 100 देहातों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन्होंने उसे अपना सुल्तान चुन दिया और बहमनी हुकूमत यहाँ कायम हो गई। तो बहमनी हुकूमत में उर्दू जो है पनपने लगी। ये वाक़या है जिसकी वजह से जुनूबी हिंदुस्तान में उर्दू आई, वरना उर्दू खुद यहाँ पैदा नहीं हुई बल्कि शुमाली हिंदुस्तान से आई और यहाँ आने के बाद उसको इस कदर फरोग मिला और सलातीन ने उसकी इस कदर खिदमत की और अवाम में इस कदर मकबूल हो गई कि जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसमें हजारों किताबें लिखी गई और इस जमाने में शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू का नाम नशा नहीं था। लेकिन 1686 और 87 में जब औरंगजेब ने इन दोनों हुकूमतों का खात्मा कर दिया तो फिर एक वो जो आड़ थी जनूबी हिंदुस्तान की और शुमाली हिंदुस्तान को टूट गई, औरंगाबाद उसका मरकज बना और दिल्ली का जो मुहावरा था जो लोग बोल रहे थे वो हिंदुस्तान तक पहुंचा। तो तकरीब जगह उर्दू ने मकाम बना लिया और उसी के वाली शायरी करके दिल्ली गए। तो फिर अगर पूरे हिंदुस्तान की एक जबान हो गई जिसे हम उर्दू कहते हैं। तो मतलब ये है कि उर्दू जबान जनूबी हिंदुस्तान में पैदा हुई हो या ना हुई हो, उसको इस्तेहकाम दिया जनूबी हिंदुस्तान, 3 सदियों तक उसकी आबियारी की, उसको इस काबिल बनाया कि अदबी जबान बन जाए और उसको अदबी जबान बनाकर जैसे आप यूँ समझिएगा कि एक छोटे से बच्चे की आप परवरिश करते हैं, लाते हैं किसी छोटे से बच्चे की आप परवरिश कर आपके हवाले कर दिया जाता है, आप उसकी निगहदाश्त करते हैं, जवान हो जाता है तो फिर आप उसकी शादी करके उसकी ससुराल को भेज दें। बिल्कुल तकरीबन यही मामला उर्दू का भी हुआ कि हम उसको उसकी दौरे तिफली में लाए थे, फिर उसको जवान और खूबसूरत बनाकर हमने उसे वापस दिल्ली को शुमाली हिंदुस्तान को हमने उसे वापस। तो मेरा ख्याल है कि इन चंद हक़ाइक़ के सामने अब ये तसव्वुर शायद सही नहीं रह गया है कि उर्दू की पैदाइश जुनूब में हुई हो। उर्दू ने उसकी निगहदाश्त जरूर की, उसको बहुत आला मकाम तक पहुंचाया और उसको इस काबिल बनाया कि वहां से वो अपना नया सफर शुरू कर सके। तो ये इसकी असली हकीकत है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ये बातें तो उर्दू क्या है, इसलिए ये बातें आपको बताना जरूरी था कि आम तौर पर हम जो है अपने तदरीसी इदारों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में उर्दू की इब्तिदा के बारे में पढ़ तो लेते हैं और यहाँ पर जैसा कि रिजवान अरशद साहब ने कहा था कि उर्दू के आफ्ताब व मक्तब में हम मौजूद हैं, उनके लिए ये तो बिल्कुल आमुख्ता है, उनके लिए मालूमात कोई मालूमात ही नहीं है। लेकिन जैसा कि वीर ने कहा था कि शेर मेरे हैं दो खवास पसंद पर मुझे गुफ्तगू अवाम से। और आज उर्दू का इस्तेहकाम कहीं होना है तो खवास के महफिलों में नहीं होगा, उसको अवाम तक पहुंचना है। तो अवाम अगर इसकी असलियत से, इसकी हकीकत से, इसकी तारीख से वाकिफ होंगे तो यकीनन इससे मोहब्बत भी बढ़ेगी क्योंकि उसकी हकीकत से वाकिफ है। यूं ही सरसरी तौर पर उर्दू से मोहब्बत करने के बाद कही जाए तो शायद हम उसके साथ वो यगानत महसूस नहीं कर सकेंगे जो उसकी हकीकत को, उसकी विरासत को, उसकी तारीख को समझने के बाद उससे तो हमारी एक निस्बत पैदा होती है, वो शायद महज मुशायरों से और अफसानों से वो मोहब्बत पैदा नहीं हो सकता। तो हमें इस बात का भी गुरूर होना चाहिए कि ये जबान, उर्दू जबान जो है उसका हमारा कोई सतही रिश्ता नहीं है, इसकी जड़ें यहाँ पैवस्त हैं, इसलिए भी हमें उससे मोहब्बत करना चाहिए क्योंकि ये जबान वो है जिसकी हमने हिफाजत की, बढ़ाया, उसको इस काबिल बनाया कि वो उर्दू की वो बुनियादी जबान बन सके जो आज जबान बन गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद थोड़ा हमारा उर्दू के बारे में सोचने का रवैया, थोड़ा सा हमारा तर्ज फिक्र जो है इसके बारे में तब्दील हो सकता है। अब मैं थोड़ा बहुत जनूबी हिंदुस्तान की तरफ लौट रहा हूँ। हम अक्सर लोगों को शिकायत है कि उर्दू का जहाँ भी जिक्र आता है तो
जनूबी हिंदुस्तान का कहीं उसका तस्करा कहीं नहीं आने पाता। हमारा अदीब, फनकार, शायर और उर्दू के जो साहिबान इक़्तिदार हैं, ये दिल्ली से निकलते हैं तो उनकी आखिरी मंजिल हैदराबाद है। हैदराबाद के जुनूब में क्या कुछ हो रहा है उसकी ना उनको खबर है, ना उस खबर हासिल करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, ये बड़ा तल्ख बयान है मेरा, लेकिन ये हकीकत भी है। मैं नहीं बता सकता कि जुनूब की रियासतों से मेरा मतलब तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना तक तो लोग पहुंच जाते हैं। कर्नाटक और आंध्र और तमिलनाडु और किसी हद तक केरल, इन रियासतों का अदबी तारीखों को उठाकर देख लीजिए, कवाले के अदब उर्दू को, ये इनका वजूद ही नहीं है। कहीं कर्नाटक का कोई जिक्र नहीं आता, तमिलनाडु का जिक्र नहीं आता, और आंध्रा वगैरह बना है उसका भी उस हल्के का जिक्र भी नहीं आता। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि इन रियासतों में, जुनूब की रियासतों में उर्दू का वजूद नहीं है? यहाँ कोई शायर और अदीब नहीं पैदा हुए? क्या उन्होंने उर्दू की खिदमत नहीं की? ये वो लम्हे फिक्रिया है जिस पर अंजुमन तरक्की उर्दू को भी गौर करना चाहिए। और ये जो मतलब है कि अब तक इस बारे में जो गलती तो मैं नहीं कहूँगा, जो कोताही हो गई हमारी तरफ से, इसकी तलाफी की कोई सूरत जरूर निकलनी चाहिए। मैं कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान वीर इदारों में जुनूबी रियासतों से मेरा मतलब है यही 4 रियासतें, इसमें केरला अभी अभी शामिल हुआ है। नकुलन साहब, प्रोफेसर नकुलन साहब में तशरीफ रखते हैं, वो अपने मकाले में आपको बताएंगे कि केरला में इस वक्त उर्दू की क्या सूरत हाल है, वो बताएंगे आप। तीसरा सवाल है जिसका जवाब कल के सेमिनार में और लोग देंगे, और ये बहुत रफ तहरीर है, इसमें मैंने वो इसलिए कि हम उर्दू से दूर हो गए, हमारी नई नस्ल की उर्दू से दूर है, और वो जो है अपने आप दीन से दूर है। रिजवान अरशद अभी तकरीबन 3 साल नहीं हुए शायद उनको एमएलए बने, 2.5 साल हुए। अब जब तकरीर कर रहे थे मुझे लग रहा था कि ये कोई बहावा पेश कर रहे, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, इतना जो है होमवर्क करके जो है आफ्ताब, मेहताब, चांद, सितारे सब ले आए जमीन पे, शम्सो कमर। अब उनको सुनने के बाद मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। रिजवान अरशद साहब 2.5 साल हुए हैं, शिवाजी नगर हल्का है। एक जमाना था कि शिवाजी नगर में जो है तालीम का एक मरकज हुआ करता था। कई स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, कोई 130 साल पुरानी है, कोई 125 साल पुरानी है, बड़ी खस्ता हालत में है, बिल्डिंगें बस टूट गई है। मैं समझता हूं एक स्कूल है जिसका नाम हफीजिया स्कूल, गवर्नमेंट हफीजिया स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, 13 करोड़ रुपए की लागत से आज वो उर्दू स्कूल तामीर हो रहे हैं, काम शुरू हो रहा है। अरे सारे कर्नाटक में एक मॉडर्न स्कूल हो गया, 13 करोड़ रुपए, और ये 13 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लाने वाले वो ऐसे ही मुझे हाल ही में मैंने एक उर्दू स्कूल के संग बुनियाद मधु किया तो मैं गया वहां पे। हफीजिया स्कूल में इसलिए है कि मेरे वालिद हफीजिया स्कूल के तालीम याफ्ता है, वहां के स्टूडेंट रहे। लतीफिया स्कूल बनकर है, वो भी टिमाया रोड में ही है। 2 करोड़ की लागत से वो स्कूल का काम शुरू हुआ है। अंजुमन तरफ उर्दू इन कर्नाटक शाख बनने के बाद जो है अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 2 स्कूलें चल रही थी। एक शिवाजी नगर हल्के में अलमीन कंबलपोश स्कूल और देवरिया में जो है अलमीन उर्दू प्राइमरी स्कूल। हमारे दोस्त यहाँ अहमद सिराज साहब मौजूद हैं,
मैंने उनसे कहा कि ये 2 स्कूल जो है यहाँ कुछ भी करें, मुझे थोड़ा मुझसे मशवरा कर लें। मैंने ये बात रहमान खान साहब को भी कहा, तो उन्होंने कहा नहीं वो स्कूल तुम अपनी जिम्मेदारी में। तो ये हजरात जो है हमारा अहमद सिराज साहब और उनकी टीम, उमर इस्माइल खान, इन सब ने मिलकर वो 2 स्कूल हमारे हवाले किए। दोनों स्कूलों में जो है अलमी कमलपोश स्कूल 2 साल कोविड की वजह से जो है वहां सिर्फ 30 बच्चे थे। मैं रिजवान अरशद साहब से कहा कि देखिए ऐसा स्कूल है, ये बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता है। उन्होंने आज तक कोई स्कूल नहीं देखी, अपने ग्रांट से, गवर्नमेंट ग्रांट से 25 लाख रुपए वहां पे दिए। आज जो स्कूल में काम चल रहा है वहां पे जो है 102 बच्चे जो है 3 महीने के अंदर दाखिले। तकरीबन 26 करोड़ का काम जो है इनके हल्के में हो रहा है तालीमी इदारों के लिए, जिसमें तमिल स्कूल भी है, कन्नड़ स्कूल भी है, तेलुगु मीडियम स्कूल भी है। लेकिन सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए 15 करोड़ रुपए का काम चला। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू की हालत अगर हमारे लोग चाहे तो सुधार सकते। मैं समझता हूँ हफीजिया स्कूल और लतीफिया स्कूल की तामीर होने के बाद बच्चे जो है लोग अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन लाइन में खड़े होंगे वहां दाखिला दिलाने। देवर जवनहल्ली का इलाका है जो यहाँ अखंड श्रीनिवास मूर्ति यहाँ पहले थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे जो है मुसलमानों का है और उर्दू बोलने वालों का है। वहां भी एक अलग स्कूल है, वो भी बड़ी खस्ता हालत है, खुला नहीं थे। मैंने एक दिन अखंड श्रीनिवास मूर्ति को वहां बुलाया और कहा कि इस स्कूल को देखो। उसने वही कॉन्ट्रैक्ट में बुलाया और कहा कि ये पूरा काम नया तैयार होगा और डायरेक्ट तैयार होंगे, काम मुकम्मल हो गया है 2 महीने के अंदर। वहां पे सिर्फ 90 बच्चे जो उर्दू मीडियम स्कूल है। अंजुमन तरह से उर्दू हिंद कर्नाटक का मैं सदर हूँ और मेरे घर के बगल में एक उर्दू स्कूल खत्म हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात तो नहीं। आज स्कूल में जो 90 बच्चे थे वहां 300 बच्चे आज एडमिशन लिए। कर्नाटक में जैसा कि रहमान खान साहब ने कहा, 1ली से 10वीं जमात तक 5000 स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल हैं यहाँ। बादशाह भाई आपका फोन, 5000 उर्दू मीडियम स्कूल हैं। इन 5000 उर्दू मीडियम स्कूल्स में तकरीबन 4500 बच्चे जो है हर साल एडमिशन लेते हैं, दाखिले लेते हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स। ज्यादातर इन स्कूल्स में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स है। 1ली जमात से 5वीं जमात तक जो बच्चे जाते हैं वो 6ठी जमात को आते आते जो है उनका ड्रॉप आउट 50% हो जाता है और 10वीं जमात तक जो है 25%। वो इसलिए कि वहां जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल रिजवान अरशद और अखंड श्रीनिवास मूर्ति जैसे लोग साथ दे दें, असल में उनकी तामीर हो जाए, नए स्कूल तामीर हो जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, तो हर वालिदैन जो है अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में भेजने के लिए तैयार है। कुछ असातिज़ा है, रिजवान अरशद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा उर्दू मीडियम स्कूल के असातिज़ा, उन्होंने कहा कि साहब हम जो है हमारा वर्कशॉप करना चाहते हैं, यहाँ कहीं हमें हॉल नहीं है, हमें हॉल की जरूरत है। हमने उनको कहा कि जो है आप अलमी कबलपोश में जो हॉल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मकसद ये था, वो ये कह रहे थे कि हम जो है क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं। ये देखकर अगर हर उर्दू स्कूल के टीचर में आ जाए कि हम तालीमी मेयार बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे बच्चे जो है जरूर उर्दू स्कूलों की तरफ आए। आज हमारी शिकायत है असातिज़ा से, वही जो है
कुछ اساتذہ ایسے بھی ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اگر کوالٹی ایجوکیشن دیں, ہم ایجوکیشن میں اگر اچھے سدھار لے کر آئیں گے تو جو ہے بچے ہمارے پڑھیں گے, بچے اردو اسکول میں پڑھیں گے. میں جناب رحمان خان صاحب کا اور رضوان اشرف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس سیمینار میں شرکت کی. اختر فاروقی صاحب, ڈاکٹر اختر فاروقی صاحب دلی سے جو ہے کل مجھے جب میں ان سے ملاقات کرنے گیا تو میں کہا, میرے ان سے ٹیلی فون پہ ہی بات ہوتی رہی, کبھی ملاقات نہیں ہو پائی. انہوں نے کہا کہ میں کہیں پروگرامز میں نہیں جاتا ہوں, آپ کی محبت ہے, یہ ان کے اور میری محبت صرف ٹیلی فون پہ ہو گئی, اب ملے ہیں تو محبت جو ہے انشاءاللہ زیادہ بڑھے گی. صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, انجمن ترقی اردو کرناٹک جو بنگلور میں جو ہے صاحب, ہمارے پاس نہ ٹیبل ہے نہ کرسی ہے. نہیں, وہ بات یوں کہہ رہے ہیں, مجھے عزیز پردی صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا مبارکباد شریف صاحب آپ جو ہے صدر بنے ہیں. میں نے ان سے یہی کہا کہ صاحب عزیز پردی صاحب نہ اس کے لیے کرسی ہے نہ ٹیبل ہے. تو انہوں نے کہا آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ کرسی اور ٹیبل آ جائے. یہ تھا مجھے وہ ایک ہمت کی بات. شکایتیں صاحب آتے رہے گی, یہاں کوئی جائیداد ہے نہیں, یہاں کوئی کرناٹک خاص کر بنگلور میں ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ یہاں جائیداد تھی, اب ہے نہیں, تو اب جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, وہ جس اللہ میں ہے وہ ہوگا, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ہم یہاں جائیداد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے رضوان اشرف صاحب سے بھی گزارش کی تھی, کیونکہ شیواجی نگر جو ہے ایک مرکز ہے کہ ہمارے لیے ایک دفتر کی ضرورت ہے, تو انہوں نے ایک بلڈنگ دکھائی لیکن وہ بہت کمزور تھی. انہوں نے کہا صاحب میں یہ بلڈنگ جو ہے نہیں دینا چاہتا, نہیں, آپ تھوڑا انتظار کیجیے, آپ کا دفتر بھی ہوگا, آپ جو ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جگہ فراہم ہے. اب الیکشن بہت نزدیک آنے والا ہے, اسمبلی الیکشن کے اگلے سال, تو میں یہ بار بار دوہرا رہا ہوں. ایک کو ہمارے رضوان اشرف صاحب کو یقیناً آپ دوسرا الیکشن جیتیں گے بھی, الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے السلام علیکم. جناب رضوان صاحب نے ان کو آفس دینے کا اور اس سینٹر کے لیے جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے. میں اپنی طرف سے سینٹر اور آفس کے لیے جتنے بھی فرنیچر کی ضرورت پڑے گی اس کا انشاءاللہ انتظام میں کروں گا. یہ ہمارے نائب صدر سید اشرف صاحب ہے. پہلی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہماری پچھلی کمیٹی نے ہمیں جو دیا تھا وہ 9,000 روپے کا تھا, تو سب سے پہلے 1 لاکھ روپے کا عطیہ دینے والے یہ تھے. دوسرے جو ہے ہمارے اعجاز علی جوہر, تو رضوان ارشد صاحب کو بھی دوبارہ دنوں کے فرنیچر آ گیا, صرف آفس اور اس کی ضرورت ہے. یہاں پہ آج مقالہ نگار جو حضرات آئے ہوئے ہیں, ابھی تک دوسرا سیشن, پہلا سیشن شروع ہونا تھا کیونکہ افتتاحی اجلاس تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. زہرانے کے بعد اگر پہلا سیشن رکھیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کو حضرات کو؟ طاہر فدائی صاحب, جی طاہر فدائی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے اجازت دی تھی تو میں اطمینان کر رہا ہوں. تو ابھی ہمارے جو مقالہ نگار حضرات جو ہے جو مقالے پیش کریں گے کل تک, اسی کتابی شکل میں ہم نے لایا, کیونکہ مقابلے جو ہے ہمیں پہلے ہی آ گئے تھے. تقریباً 360 کے قریب وہ پیجز کا مجلہ بنا ہے. کل آخری سیشن میں جو ہے وہ اس کا اجرا ہوگا, جس کا اجرا جو ہے ہمارے نصیر احمد صاحب یونیورسٹی کے ہاتھ میں کروائیں گے, کیونکہ کل آخری سیشن ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقالے حاصل کریں. میں آپ کا کافی احسان مند و شکر گزار ہوں. بیچ میں ایک بات اور بول گیا میں,
एक मीटिंग हुई जिसमें रहमान खान साहब भी थे, रिजवान अरशद साहब भी थे और अब्दुल हाफिज साहब भी थे। वहां हमने ये की जो 5000 उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, इसका एक सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की है कि ड्रॉप आउट ज्यादा क्यों हो रहे हैं, एनरोलमेंट क्यों कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने 5 मेंबर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें आदमी सलीम साहब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, अजीजुल्लाह बेग साहब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सलाउद्दीन साहब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ये यहाँ मौजूद हैं, एम.ए. खालिद साहब और मीर अली साहब रिटायर्ड ऑफिसर्स। तो इन हजरात की इस कमेटी ने हर हफ्ता वो मुलाकात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल्स को कैसे उसको आगे ले जाए, उसकी तरक्की कैसे हो, उसमें क्या कमियां हैं हमें नहीं मालूम। वो हर हफ्ता मिल रहे हैं और हमारा आदमी सलीम साहब जो है कई स्कूल्स विजिट कर चुके हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स को। ना हमसे उन्होंने कोई कार पूछी ना कुछ पूछी, लेकिन काम बड़े ही अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सेमिनार से कुछ होने वाला है, यकीनन कुछ हुआ नहीं हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन सेमिनार से फायदा ये हुआ कि कर्नाटक में अंजुमन तरक्की उर्दू जिंदा है, ये हमने साबित किया। अब लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और चलता है। मैं यहाँ पे हमारे अंजुमन के मेंबरशिप के फॉर्म्स रखे हैं। आज और कल जो मेंबर होंगे उनको मुफ्त होगा, जो मेंबरशिप फॉर्म फिल कर लीजिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे।